بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک ایسا بیوقوف سا نائی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بال کاٹتے وقت وہ کان کاٹ دیتا تھا اور حجامت کرتے وقت گلا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا کام ٹھپ ہوتا گیا اور وہ اپنی چیزیں بیچ بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی بچی، اس کا اسرہ اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ ان میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نائی کی بیوی اسے اس کی بے وقوفیوں پر تانے دے رہی تھی کہ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنے کا فائدہ؟ میں تم سے متفق ہوں، میں نے کبھی خود سے کچھ نہیں کمایا اور میں کبھی خود سے کچھ کما بھی نہیں سکتا، اور میں کبھی کسی کو کمانے بھی نہیں دوں گا، یہ حقیقت ہے۔ تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگو، میں بھوکا نہیں مرنا چاہتی، بادشاہ کے محل جا کر اس سے کچھ مانگو۔ شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، بادشاہ کو کہو کہ تمہیں بھی کچھ دے دیں۔ نائی نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کہا کہ وہ نائی کو کچھ بھی دے دے۔ کچھ بھی کیا دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اب نائی کی بیوی نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس سے کیا مانگنا چاہیے، اور نائی کا اپنا دماغ تو کچھ سوچنے سے ہی قاصر تھا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، کچھ بھی دے دیں۔ کچھ زمین دے دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نائی کی جان میں جان آئی اور وہ کچھ بھی کہے کے مسئلے سے نکلا، اور وہ بولا، ہاں کوئی بھی زمین دے دیں۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر ایک اجڑی پجڑی زمین دینے کا حکم دیا۔ نائی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا، تمہیں کیا ملا؟ جلدی دو تاکہ میں روٹی خرید کر لاؤں۔ نائی نے زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی۔ نائی بولا، لیکن زمین تو زمین ہوتی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ کیا تم سے زیادہ بے وقوف کوئی دوسرا بھی ہے؟ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس میں کاشت نہیں کر سکے؟ کیا تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہیں؟ نائی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، مگر چالاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آ کر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نائی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نائی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے، اور خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی کوئی آدمی ان کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اس زمین کے قریب ہی جنگل میں 7 چور تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ نائی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین پر کیا تلاش کر رہے ہیں۔ شام ڈھلے ایک چور نائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس سے کس چیز کی تلاش ہے۔ نائی کی بیوی نے پہلے تو کچھ ٹال مٹول کی، پھر گویا تھک ہار کر کہنے لگی، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے یہاں اشرفیوں کی 5 دیگیں دفن کی تھی، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے بھی وہ فوت ہو گئے تھے۔ اب ہم وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں، تم کسی کو یہ بات مت بتانا ورنہ وہ دیگیں تلاش کر کے لے جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ مگر شام ڈلے جب نائی اور اس کی بیوی گھر واپس گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور ساتوں مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا چلا کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلا دیا گیا ہو، مگر انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا ہو۔ اگلی صبح نائی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ بیج ادھار لائی اور زمین میں بو دیے۔ ہل بہت اچھا چلا تھا تو فصل بھی بہت اچھی ہوئی۔ نائی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی اتنے پیسے بچ گئے تھے کہ اس نے کوئی سونا خریدا اور ایک مٹکے میں چھپا دیا۔ چوروں نے یہ دیکھا تو وہ بہت غصے میں ہوئے۔ وہ نائی کے گھر گئے اور اسے کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو، کیونکہ ہل ہم نے ہی چلائے تھے۔ نائی کی بیوی ہنسی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ زمین میں سونا ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں ملا۔ اب وہ سونا گھر میں ایک مٹکے میں چھپا ہوا ہے، لیکن تمہیں نہیں ملے گا۔ چوروں نے کہا، تم سیدھے طریقے سے ہمارا سونا نہیں دو گی تو ہم خود لے لیں گے، اور آج رات دیکھ لینا۔ نائی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔
नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से उसे छुपते देख लिया था। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया था। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी मैनगाह से निकला और मटका लेकर भाग गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल बांटने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाई रखी है ताकि किसी को भी शुबह ना हो, और पहले मिठाई बांटकर खा लेते हैं, फिर सोना बांटेंगे। जंगल में घुप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टिटोल कर मिठाई निकाली और खाने को मुंह में डाले और साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई की जगह अपले डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी उनकी शक्लें देखकर हंसने लगी और वो बोले, तुमने 2 मर्तबा हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो चले गए। जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने उसे इस मर्तबा भी छुपते देख लिया था। नाई ने फिर परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गद्दे के नीचे तो नहीं छुपा लिया? नाई की बीवी ने उसे तसल्ली दी, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, सोना महफूज है। मैंने उसे बाहर नीम के दरख्त की ऊंची शाखों में एक पोटली में बांधकर छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब सब सो गए तो अपनी मैनगाह से निकला और उसने अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी दिखाई दी। चोरों को सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक आदमी ऊपर चढ़े और उसे उतार लाए। एक चोर ने कमीज उतारी, कसकर धोती बांधी और ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ यह था कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा और उसने हाथ आगे बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने जोर से उसकी रान पर डंक मार दिया। चोर ने तकलीफ से परेशान होकर बेसाख्ता अपनी रान पर हाथ मारा। चोर कहें, तुम पोटली उतारने की बजाय इसमें से सोना निकालकर अपनी जेब में भर रहे हो। नीचे खड़े चोर चिल्लाए। अंधेरे की वजह से बाकी सब चोरों को यही लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, दरख्त पर कुछ है जो मुझे चुभ रहा है। दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा। उसी वक्त एक दूसरी मक्खी ने उसके सीने पर डंक मारा। चोर ने सीने पर हाथ मारकर उसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चिल्लाने लगे, हमने देख लिया है, तुम सोना चुरा रहे हो। उन्होंने एक दूसरा चोर ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियां मुश्तइल हो चुकी थी। उन्होंने उस चोर के जिस्म पर काटना शुरू किया तो वो बेख्तियार अपने जिस्म पर जगह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा कि वो दूसरा चोर भी बेईमान निकला और सोना छुपा रहा है। सब चोर एक एक करके ऊपर चढ़ते गए और हर एक के साथ यही हुआ। आकर सरदार की बारी आई। उसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था कि वो शाख जिस पर वो खड़े थे वजन बर्दाश्त न करते हुए टूट गई और सब नीचे जा गिरे। वो छत्ता उनके ऊपर गिरा और मक्खियां उन पर टूट पड़ी। सब चोर जान बचाकर भाग निकले। उसके बाद कई दिन तक सुकून रहा क्योंकि चोर इस काबिल ना थे कि चल फिर सकते। नाई और उसकी बीवी सोचने लगे कि शायद अब चोर दोबारा तंग नहीं करेंगे, लेकिन वो गलत थे। एक रात जब वो कमरे की खिड़की खोलकर सो रहे थे तो नाई की बीवी की आंख सरगोशियों की वजह से खुल गई। चोरों की आवाज़ पहचानकर उसके होश उड़ गए और उसने सोचा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और नाई का उसरा पकड़कर खिड़की के साथ छुपकर खड़ी हो गई। पहले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उसरे वाला हाथ घुमाया और चोर की नाक काट दी। खुदाया, मेरी नाक किस चीज़ से लगकर कट गई है, चोर तकलीफ से चिल्लाया। खामोश, तुम सबको जगा दोगे, चुप करके अंदर जाओ। बाकी चोरों ने उसे आहिस्ता आवाज में डांटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से बहुत खून बह रहा है। बुज़दिल, तुम्हारी नाक खिड़की के पट से टकराकर जख्मी हो गई है।
और तुम रो पीट रहे हो। मैं अंदर जाता हूं, दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सर अंदर किया तो नाई की बीवी ने उसरा चला दिया और उसकी भी नाक कट कर जा गिरी। खुदाया, अंदर वाकई कोई तेज चीज है, चोर तकलीफ से चीखा। बांस की कोई खांच निकली होगी, तुम एक तरफ हो, मैं देखता हूं, तीसरे चोर ने कहा और अपना सर खिड़की से अंदर डाला। उसकी नाक भी कटकर दूर जा गिरी। उफ, वाकई ही कोई तेज चीज है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी नाक काट डाली हो। तीसरा चोर पीछे हटते हुए कर करा रहा था। बेवकूफो, तुम बुज़दिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सर डाला और नाक कटवा बैठा। पांचवें और छठे चोर के साथ भी यही हुआ और सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो। एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वो सब जख्मियों की हिफाजत और जिम्मेदारी कर सके। किसी अगली रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा और सब चोर वापस लौट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाकें एक डब्बी में जमा कर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन नहीं रहा, तो नाई और उसकी बीवी ने बाहर सेन में चारपाइयां बिछा ली। चोर दोबारा वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि सोना जरूर नाई की बीवी के पास है, तो उसे ही उठाकर ले जाते हैं। वो दबे कदमों के आगे बढ़े और उसकी चारपाई अपने कंधे पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख जकोले खाने से खुल गई और वो ये जानकर हैरान रह गई कि चोर उसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गए और वो एक घने दरख्त के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहीं रुकते हैं और चारपाई नीचे रखकर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना और उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है और एक ऊंचे दरख्त की शाख को पकड़कर ऊपर दरख्त के चढ़ गई। चोरों ने चारपाई कांधे से उतारकर नीचे जमीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहरे की पहली बारी किसकी होगी। सरदार का नाम सबसे पहले निकला, क्योंकि बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। सब चोर सो गए और सरदार पहरा देने लगा। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। उसने अपना सफ़ेद दुपट्टा चेहरे और सर के गिर्द लपेट लिया और आहिस्ता आवाज में मोहब्बत भरे गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। उसने सोचा कि यह जरूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे खुश शक्ल और हैंडसम मर्द पर आशिक हो गई है। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और पूछा, हसीना कौन हो तुम? हसीना, नीचे जमीन पर उतरो और मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया और आशिकाना गाने धीमे सुरों में गाती रही। सरदार ने यह देखा तो खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आ भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है ए परी? सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई होते हैं। सरदार ने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी ज़ुबान को लंबा सा बाहर निकालो। मैं उसे अपनी ज़ुबान से छूकर जान लूंगी कि यह ज़ुबान सच बोल रही है या झूठ। चोरों के सरदार ने खुश होकर अपनी ज़ुबान खूब बाहर निकाली। परी उसके करीब हुई और उसकी ज़ुबान को ज़ोर से अपने दांतों से काटकर दो टुकड़े कर दिए। सरदार तकलीफ की शिद्दत से ज़ोर से चीखा और दरख्त से नीचे जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ? दूसरे चोर जाग गए। सरदार ने ऊपर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो ज़ुबान कटने की वजह से बोलने से कासिर हो चुका था। सरदार पर जादू हो गया है। दरख्त पर जरूर कोई चीज़ है, चोर घबराकर बोले। उसी वक्त नाई की बीवी ने अपनी सफ़ेद चादर लहरानी शुरू कर दी और मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी। चोरों की खौफ से जान निकल गई। उन्होंने बदहवास होकर अपने सरदार को कंधे पर उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगे।
وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے اپنی چارپائی سر پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کوئی ٹھیک ہوا تو اس نے تتلا کر اور اشارے کر کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیں اور زبانیں کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چلاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، اور وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے انصاف طلب کیا کہ وہ نائی سے ان کی محنت کا معاوضہ دلوا دے۔ لیکن نائی کی بیوی نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناکیں پیش کی۔ بادشاہ نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور نائی کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک اس نائی کے سر پر اس کی عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے، یہ کوئی حکیمانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس سے بہتر وزیر اعظم نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔